خیربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر نے سیکیورٹی صورتحال کی جائزہ میٹنگ میں کی شرکت، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری داخلہ بھی شامل تھے، وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں نہ بلانے پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناراض۔ تاریخی مغل شاہراہ سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ سڑکیں بند، مڑوا واڑون اور تریر کے لوگ پریشان۔ یوسمرگ میں شعبہ سیاحت سے وابستہ افراد کا سری نگر میں محکمہ سیاحت کے افسران کے خلاف احتجاج۔ اور شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں ریت مافیا سرگرم، فلڈ کنٹرول محکمہ دریائے جہلم میں غیر قانونی کانکنی میں ملوث، آبادی کا الزام۔ موضوعات کی سمن جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کو لے کر دلی سے سری نگر تک صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ایک ہفتے کے دوران 3 بار میٹنگیں منعقد ہوئیں، جن میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، داخلہ سیکرٹری اور فوج کے سربراہ نے 2 روزہ میٹنگوں میں لگاتار شرکت کی، جبکہ گزشتہ دنوں کی میٹنگ میں بی ایس ایف، سی آر پی ایف اور دیگر مرکزی ایجنسیوں نے بھی شرکت کی۔ نئی دلی میں ان سیکیورٹی جائزہ میٹنگوں کے بعد آج سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ آج کی میٹنگ پولیس کنٹرول روم بٹمالو میں منعقد ہوئی۔ آج کی میٹنگ میں فوج، پولیس اور دیگر ایجنسیوں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں میٹنگ میں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری داخلہ بھی شامل تھے۔ سری نگر اور دلی میں منعقدہ جائزہ میٹنگوں کو کافی اہمیت کا حامل بتایا جا رہا ہے اور حالیہ چند واقعات کے بعد مرکزی وزارت داخلہ نے صورتحال کا سخت نوٹس لیا ہے۔ البتہ آج کی میٹنگ میں بھی جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ وزیر اعلیٰ سری نگر میں ہی موجود تھے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج سری نگر میں کہا کہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کو سیکیورٹی جائزہ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو مدعو کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ قانون سیکیورٹی کے معاملات لیفٹنٹ گورنر دیکھتے ہیں، لیکن اصولی طور پر وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں بلانا چاہیے تھا۔ ناصر اسلم وانی نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو جموں کشمیر میں قانون انتظام اور سیکیورٹی کے حوالے سے وسیع تجربہ حاصل ہے، مگر انہیں ایک بار بھی ایسی میٹنگوں میں مدعو نہیں کیا گیا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج دن بھر سول سیکرٹریٹ سری نگر میں موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج سری نگر ضلع کے ممبران اسمبلی کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی۔ میٹنگ میں بجٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں شہر سری نگر کی تعمیر و ترقی پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ممبران اسمبلی کو یقین دلایا کہ الیکشن منشور میں لوگوں سے جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں انہیں ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ اسی دوران آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل ضلع کا دورہ بھی کیا۔ موصوف نے وہاں ذرائع ابلاغ سے بات کی اور بتایا کہ وزیر داخلہ امت شاہ کی ان سے دلی میں جو ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں کے دوران کن کن معاملات پر بات ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو بجٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ بہت سے مدوں پہ بات ہوئی، جو حال ہی میں سوپور میں ہوا اس کے بارے میں بات ہوئی، جو کٹھوا میں ہوا اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان دونوں انسیڈنٹس کا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی اس کے لیے جو ہے قصوروار کو پھر سزا ملنی چاہیے۔ ایک تو وہ مدعا رہا، ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہوئی۔ 3 تاریخ سے بجٹ کا سیشن لگنا ہے۔ ہم فی الحال تو ایک یوٹی ہیں، مرکز کا رول رہتا ہے جموں کشمیر میں۔ بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی، کافی سارے ایشوز تھے جن کے بارے میں ہوم منسٹر صاحب سے میری بات رہی۔ یہ تھے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جنہوں نے آج گاندربل ضلع کے اپنے دورے کے دوران ذرائع ابلاغ سے بات کی۔ سمن جموں کشمیر میں رواں برس بہت کم برفباری ہوئی، لیکن اس کے باوجود تاریخی مغل شاہراہ سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند پڑی ہیں۔ مڑوا واڑون کی آبادی سڑک بند ہونے کے باعث طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ علاقے میں غذائی اجناس کی شدید قلت پائی جا رہی ہے، جبکہ گھروں میں چاول اور آٹے کا سٹاک بھی ختم ہو چکا ہے۔ مڑوا واڑون کی آبادی کا مطالبہ ہے کہ مرگن ٹاپ سڑک کو فی الفور قابل آمد و رفت بنایا جائے تاکہ ماہ سیام سے پہلے تازہ سبزیاں اور پھل وہاں پہنچائی جائیں۔
आबादी का कहना है कि 10वीं और 12वीं जमात तक के इम्तिहान भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए मरगन टॉप सड़क का खोला जाना अजहद जरूरी है। इसी दौरान एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि मौसम ठीक रहा तो 6 रोज के अंदर मरगन टॉप को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा। जम्मू डिवीजन की तरफ से श्रीनगर वालों ने भी फोन किया था कि हम भी लगाएंगे, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर वो आ जाएंगे तो हम भी इधर से करेंगे तो 5-6 दिन में क्लियर करेंगे। लेकिन मसला ये है कि कल भी मौसम खराब था, परसों में पिछले 2-4 दिन से मौसम खराब था, तो जैसे ही कल अगर ठीक मौसम निकला परसों से हम काम शुरू करवा देंगे। ये वैसे तो मैंने चीफ इंजीनियर साहब को बोला कि कल से ही शुरू करवा दो। बताया जा रहा है कि पिछली बार भी आपने कहा था मशीन एक दिन आई और फिर वापस चलेगी। नहीं लगाई, आपको मैंने उस टाइम भी बोला था कि मौसम खराब, अगर मौसम ठीक रहा, क्योंकि पेशेंट गोई थी कि मौसम 5-6 दिन खराब है और सबको ये मालूम है कि वहाँ बर्फ पड़ी। अब कल अगर मौसम ठीक रहा या कल मशीन लगेगी, नहीं तो परसों से काम शुरू हो जाएगा दोनों तरफ से। अब माह रमजान भी शुरू होने वाला है और बच्चों के इम्तिहान भी शुरू होने वाले, बहुत सारे बच्चे जो है अनंतनाग में, जम्मू में है। बस सिर्फ मौसम पे डिपेंड है। मैं वादा करता हूँ मड़वाड़ वालों से कि आने वाले 2-4-5-6 दिन के अंदर अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। परसों से मरगन टॉप पर मशीन का काम शुरू किया जाएगा। बात कर रहे थे एमएलए प्यारेलाल शर्मा। सरहदी इलाका गुरेज के कई देहात अभी भी बंद पड़े हैं, चूंकि इंतजामिया लिंक रोड से अभी तक बर्फ हटाने में नाकाम रहा है। हालांकि इस साल गुरेज में भी बहुत कम बर्फ रिकॉर्ड की गई। तिरेल के नीरू नाले से सफेदाब गांव की 7 किलोमीटर की सड़क दिसंबर माह से आमदरफ्त के लिए बंद पड़ी है और अभी तक इस सड़क से बर्फ हटाई नहीं गई है। गांव के लोगों ने आज नीरू नाले के नजदीक बर्फ साफ करने वाली एक मशीन को भी रोका, लेकिन फिर भी मुतल्लिका महकमे ने नीरू नाले से सफेदाब सड़क पर काम शुरू नहीं किया और यही हाल नीरू से सिकंदर तक की सड़क का है। इलाके के लोगों ने इन मामलात में आला हुक्काम की फौरी मुदाखलत की अपील की है। मेरा नाम मोहम्मद मंदर रूहानी है। हर जगह में बर्फ हटाई गई। हमारी जो रास्ता है सड़क नीरू से 7 किलोमीटर, वहाँ पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया। हमें बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडीज जो है सुबह चलती है, शाम को नीरू पहुँचती है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस बात का अजाला करे, जल्दी से जल्दी हमारा रोड खोल दिया जाए। मेहरबानी होगी डीसी साहब की, हमारा रोड खोला जाए। हमें बहुत तंगी है, मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी हमारा रोड खोला जाए। नीरू से सिकंदर और सफेदाब जाने वाली सड़कों को फिलफौर खोल दिया जाए, मकामी आबादी का पुरजोर मुतालबा। समन शब बारात की मुक़द्दस तकरीब कल मनाई जा रही है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनाकिद होगी, जहां रात भर दुरूद अज़कार और ख़तमात मौज़मात की मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक ज़ियारत शरीफ हजरत सैयद साहब सोनावार में कल नमाज इशा 10 बजे अदा की जाएगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर रिजाल ने शब बारात के मुकद्दस मौके पर लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की है। और अब रुख करते हैं शुमाली कश्मीर का। शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके में दरिया जेहलम में गैर कानूनी कानकनी करके रेत और बाजरी निकालने का सिलसिला जारी है। मकामी आबादी का मानना है कि इस गैर कानूनी अमल में महकमा फ्लड कंट्रोल बारामूला डिवीजन और माइनिंग का महकमा मुलव्विस है। दरिया जेहलम में गैर कानूनी माइनिंग से जहां इको पार्क का नुकसान हुआ है, वहीं कई वाटर सप्लाई स्कीमें भी मुतासिर हुई हैं। आबादी का मजीद कहना है कि जो हजारों मुकैब फुट रेत और बाजरी जब्त की गई थी, वो भी महकमे फ्लड कंट्रोल डिवीजन बारामूला ने गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ बारामूला से करामत कयूम। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी और गैर साइंसी तरीके पर कानकनी कोई नया मामला नहीं है और ये एक बड़े माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मामला की हिसासियत उस वक्त पेचीदगियों का शिकार हो जाती है जब कानून की आड़ में सब कुछ गैर कानूनी तौर किया जाए। चोरी का सामान बरामद करके फिर ऑक्शन के नाम पर उसी को औने पौने दामों पर बेचा जाए। मामला यूं है कि शहरबीन में रेत माफिया पर एक रिपोर्ट जनवरी के आगाज में नशर की गई, जिसके नतीजे में महकमा फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन ने बादलियार में करोड़ों रुपए मालियत की रेत, नालामक और बाजरी जब्त की। फिर इसके बाद मुतल्लिका इंजीनियर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड को एक चिट्ठी 13 जनवरी 2025 को इतला करता है और उसके बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल
बारामूला डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर बारामूला को एक ऑर्डर बतारीख 15 जनवरी 2025 देता है कि 1900 क्यूबिक मीटर जो कि 18,000 मुकैब फुट बनता है वो मजकूरा शख्स को उठाने की इजाजत दी जाए, जबकि मजकूरा शख्स से ही ये मटीरियल जब्त किया गया था। इसके एवज 3,37,011 रुपए मौका पर ही स्टेट इंजीनियर ने आज खुद ऑप्शन की है। देखना यह है कि क्या स्टेट इंजीनियर इतने बड़े डंप को ऑप्शन करने का इख्तियार रखता है या नहीं। इधर दूसरी तरफ स्टेट कमिश्नर रेवेन्यू बारामूला ने एक चिट्ठी बतारीख 16 दिसंबर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फुलत को लिखा है कि अबरा इंफ्रास्ट्रक्चर को जेर तमीर एंटी करप्शन ब्यूरो की बिल्डिंग की बनाई के लिए 400 क्यूबिक मीटर नाला STCCD के मध्य मुकाबल दरियाई जाहिल से उठाने दिया जाए, जिस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल ने मजकूरा फर्म को 69,220 रुपए के 400 क्यूबिक मीटर उठाने की इजाजत दी। इस तारीख खत किताबत की कापियां मुतल्लिका तहसीलदार और SHO के नाम इजरा की गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जो शराइत इस अलाटमेंट में रखे हैं उन तमाम की खिलाफ वर्जी मौका पर हो रही है। JCP पोकलैंड मशीनों के अलावा स्क्रीनिंग भी बीच दरिया में हो रही है। इस पर तो रही हूँ कि दरिया के दोनों किनारों पर मुतल्लिका अफराद ने आज खुद दरियाई जाहिल में गाड़ियां और हेवी मशीनरी उतारने के लिए रोड बनाया है, जिससे दरिया के किनारों पर बड़े पैमाने पर तबाही वाक़ा हुई है और दिन रात दरियाई जाहिल में ये मशीनें काम करती हैं। महकमा फ्लड या मुतल्लिका महकमों का कोई भी मुलाजिम मौका पर मौजूद नहीं रहता है। इस तरह गैर साइंसी तरीके से दरियाई जाहिल से कानूनी करने से कई वाटर सप्लाई स्कीमों इरीगेशन स्कीमों को खतरा लाक हुआ है, जिनमें करोड़ों रुपए की तामीर से की गई इको पार्क के व्यू पॉइंट और प्रोटेक्शन वाल निकल आए हैं, जिससे बड़ा हादसा पेश आ सकता है। टूरिज्म महकमा भी इस हादसे में शामिल है और खामोश तमाशाई बन बैठे हैं। जलसीरी वाटर सप्लाई स्कीम, वीरवन पंडित कॉलोनी वाटर सप्लाई स्कीम, लिफ्ट इरीगेशन फेरी और दरिया के किनारे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को भी खतरा लाक हो गया है। इतना ही नहीं, साइल कंजर्वेशन और फ्लड की नर्सरियों से सैकड़ों दरख्त काटे गए हैं। इस सूरत हाल में जब महकमा माहौल फ्लड कंट्रोल, पुलिस और जॉलजी माइनिंग और रेत मास्टर के सरगना एक साथ हों तो इंसाफ की तवक्का किससे की जाए। इन इलाकों के लोगों ने मुतालबा किया है इस पूरे मामले की तहकीकात आला सतह पर कराई जाए ताकि खजाने आमरा को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाया जा सके और दरियाई जाहिल की खूबसूरती को भी बहाल कराया जा सके। बारामूला इलाके में दरियाई जहलम से गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजी निकालने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। PDP के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने आज लूनीवाली रफियाबाद का दौरा किया और वहां हालिया आग से मुतासर कुंबे से हमदर्दी का इजहार किया। अल्ताफ अहमद मलिक ने सरकार से मुतालबा किया है कि आग से मुतासरा आलिमुद्दीन के हक में फौरी तौर पर इमदाद फराहम की जाए और PMAY के तहत उन्हें मकान की तामीर के लिए मुआवजा दिया जाए। इधर बड़गाम से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात शमसाबाद खान साहब में एक तेंदुए ने मोहम्मद रमजान भट्ट के गाँवखाने में दाखिल होकर वहां 16 भेड़ें हलाक कर दी। आबादी ने वाइल्ड लाइफ महकमे से अपील की है कि इस खूंखार तेंदुए को फौरी तौर पर पकड़ा जाए ताकि मजीद हमलों से बचा जा सके। समय श्रीनगर के करीब वाक़े इलाका मीरगुंड में महकमे सेरिकल्चर का सीड स्टेशन बुरी हालत में बताया जाता है।
इत्तलात के मुताबिक हालिया आग की एक वारदात में मीरगुंड में महकमे का काफ़ी नुकसान हुआ। बताया जाता है कि यह नुकसान मुलाजमीन की लापरवाही की वजह से हुआ। इसी दौरान आज सेरिकल्चर महकमे के डायरेक्टर बराए जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने खुद मीरगुंड का दौरा करके वहां सूरत हाल का जायजा लिया और मौके पर ही 3 मुलाजमीन को मुअत्तल किया। मकसूद साहब, अब सीजन आ रहा है हमारा प्लांटेशन का, नई प्लांटेशन या नया जो हम नर्सरी बनाते हैं या जो प्लांट हम अपने फार्मर्स में देते हैं, उसका सीजन हमारे से यहाँ स्टार्ट होगा। यहाँ जम्मू में तो हमारा जनवरी से ही चलता है, जनवरी फरवरी, तो यहाँ हमारा मार्च से होगा। तो अभी हम जायजा ले रहे हैं हमारे पास कितने प्लांट हैं या नया कितना हमने ग्राफ्ट वगैरह करना है, तो इसका हमने जायजा लिया। और जो दूसरी तैयारी हमारी होती है इंक्यूबेशन, क्योंकि हमारा ये मेन बेसिक सीड स्टेशन है, यहाँ से हम इंक्यूबेशन भी करते हैं और जो हमारे वर्म्स वगैरह होते हैं जो हम लेटर ऑन का सीड बनाते हैं, लोकल सीड, तो उसका जायजा लिया। स्टाफ की क्या पोजीशन है, बाकी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी इक्विपमेंट, उसका जायजा लिया। तो उस सिलसिले में गए थे, क्योंकि कुछ टाइम में मैं जम्मू भी था, जम्मू का भी जायजा लिया, तो यहाँ ये चीज़ देखी। इसके तरह की इतलात हैं कि बेसिक सीड स्टेशन मीरगुंड में हालिया आग की एक वारदात में कुछ नुकसान हुआ और बताया जा रहा है कि वो मुलाजमीन की लापरवाही से पेश आया। मकसूद साहब, मैं भी नहीं चाहता हूँ कोई ऐसी एक्शन करना जिसमें मैं मुलाजिम को सस्पेंड करूँगा या कोई ताज़ीबी कार्रवाई करूँ, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कोई फायर एक्सीडेंट हुआ, उसका तहकीकात जारी है। तो जब तक उसका तहकीकात का रिजल्ट आएगा तब तक हमने जो वहाँ के 2-3 मुलाजिम थे उनको हमने सस्पेंड किया। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा एसेट ये कहीं नुकसान हो जाए, हमारा लैंड एनकरेज हो जाए। ये मैसेज मैं दूसरे मुलाजिमों को भी देना चाहता हूँ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे जम्मू कश्मीर में, उनको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से देनी चाहिए और पूरी जो रखवाली होती है अपने एसेट की, तो उसकी करनी चाहिए। ये इबादत के तौर लेना चाहिए अपना काम, उस हिसाब से चलना चाहिए। तो इसमें भी जिसने गफलत शारी की होगी उसको हम ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल हमने 3 मुलाजिमों को वहाँ सस्पेंड किया। मीरगुंड स्टेशन के 3 मुलाजमीन को किया गया मुअत्तल। बात कर रहे थे महकमा सेरिकल्चर के डायरेक्टर बराए जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट। समन वादी कश्मीर अब ऑल सीजन टूरिस्ट प्लेस के जुमरे में आ चुकी है और इस साल गुलमर्ग ही नहीं, पहलगाम, दोदपथरी और सोनमर्ग में भी सरमा के दौरान हजारों सयाहों का रुख हुआ। अलबत्ता यूसमर्ग में सियाहत से वाबस्ता अफराद, खास तौर पर घोड़ेबान, इस बात पर खासे मायूस और परेशान हैं कि महकमे सियाहत ने यूसमर्ग को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रखा है। गरचे यूसमर्ग को 1976 में सियाहती नक्शे पर लाया गया था। यूसमर्ग में सियाहत से वाबस्ता अफराद आज डायरेक्टर टूरिज्म से मिलने के लिए श्रीनगर आए थे ताकि उन्हें अपनी रुदाद सुना सकें, मगर ऑफिसर मौसूफ ने कई घंटे तक उन्हें इंतजार कराया और फिर अपने दफ्तर को छोड़कर किसी मीटिंग के लिए निकल पड़े। यूसमर्ग के वफ्द ने बाद में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आकर मीडिया के सामने अपनी रुदाद कुछ यूं बयां की। जनाब यूसमर्ग पे चलावान होटल गुडविल सैद वथमित एज डेलीगेशन वत्स योर टूरिस्ट सेंटर आज दटो डिमांड अगर वनकस टूरिस्ट फ्लो यूता मन सन बच्चे खान यार भरत बत सूचतोख नफर 10 नफर 50 टूरिस्ट। अगर 1970 मन आमुत टूरिस्ट मैपस पे वुन तान ना कोर दगदार कह कि डेवलप कर, चाहे सह मतलब कीन इंटरेस्ट नहीं अत मुतलिक वसा सो डेलीगेशन है, मगर बदकिस्मती डायरेक्टर सबन थे 2-3 घंटन प्यारना, मगर पत समखो कहीं गई मजबूर योत इन खतर कि सोन यह दाद वात तिम जान, हालांकि प्रेथ कह मीडिया दरवाज खटखटोमुत, मगर या अल्लाह ताला कुन बुत फिर नत गए दुनिया लुक तह वन युत योत कि अगर गाड़ 400 यहान दिमहा पन्न शुरन भरपूर बत, बाकी ना बे डेवलप बेसिक फैसिलिटी कहीं कह सड़क ट्रवल वाल अगर दिहार वन, अगर सर तुम करू यह पन्नस मंशूरस मज कि अगर सर दोदपथर जरूरी, गुलमर्ग जरूरी, पहलगाम जरूरी, सोनमर्ग जरूरी या पे लोकल जरूरी, यह यूसमर्ग थो पन्नस पैकेजस मज ताकि वो टूरिस्टस बुत जेनहा रपे दह। बाकी जनाब सोन युत डिमांड कि अनतो कुछ जाए कुछ हदस मज अनतो पे करो रहम। डायरेक्टर साहब कर पन मुतालबा डायरेक्टर साहब यह सोन मुतालबा वन ट्रवल वाल वन इन यूसमर्ग पैकेजस मज गा तौर इन गो तौर तीज कह यूसमर्ग त्रुमुत नजर अंदाज कर यूसमर्ग गई तकरीबन 20 वरी पत्म वन कि ये यूसमर्ग थो डेवलपमेंट टूरिस्ट यह और फैसिलिटी रोजा
बाकी चक सो यूस मार कर्मस खुदा हवाले प्रचान चन तक कह अस तो वुचन वनिस तान कह गए वो डायरेक्टर साहबस रू 3 घंटन तक पाना पत वो डायरेक्टर साहब द्राव अस कोर मुलाकात कहें क्या आय इन क्या मुतालबो सह वोथ तो द्राव गई मजबूर पे योत खुद वातनो यह कत ब्रो क्या सारे गया यह खास कर ट्रवल वाल ग टूरिस्ट डिपार्टमेंट डिजिटल बोर्डा यूस मर्ग हूं बोर्डा यह कुन डिजिटल यूस मर्ग ये वेलकम कर टूरिस्ट आन सा यूस मर्ग ये सात टूरिस्ट वातान पे वन यह हसा जाए ये बेहतरीन खूबसूरत जाए मगर यह नसा कुन अस नसा पाई तोत वत वन इन ट्रवल वाले करान अत एडजस्ट करान पैकेजस में थावान करो रोजगार पन शहत गुर वल दरबदर इलाके यूस मर्ग से ये घोड़ा चलाने वाले पोनी एसोसिएशन के लोग और होटलियर्स और वो जो गरीब मजदूर रहते हैं उनकी एक डेलीगेशन आई थी अपनी बिपता जो उन पर गुजर रही है वो सुनाने के लिए जो टॉप ऑफिसर है डायरेक्टर टूरिज्म ये सुबह 10 बजे वहां पे पहुंच गए और 1 बजे तक इनको कहा गया कि डायरेक्टर साहब ने बोला आप डिप्टी डायरेक्टर को मिलो डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं आप असिस्टेंट डायरेक्टर को मिलो लास्ट में जब कोई इन्होंने नहीं मिला इन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया कोई बड़ा मसला नहीं है इनका मसला इतना है कि इनके 600 घोड़ों की वहां पे लाइसेंस दी गई है इनके जिंदगी का दारोमदार टूरिज्म पर है और दूसरे जो ये होटलियर्स तकरीबन 50-60 है इनका दारोमदार जिंदगी का दारोमदार ही टूरिज्म पर है ये होटलियर वाले हैं ढाबा वाले ये ढाबा वाले बेचारे उधर बड़े होटल कहाँ पे है इन्होंने वही जमीन पे लगाए हैं वो टैक्स सेट वहीं पर टूरिस्ट के लिए कुछ बनाते हैं कुछ खाना शाना और अपना गुजारा उसी पे चलाते हैं अब तो हमें पता था कि यहाँ पे अब पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई है शायद जो ब्यूरोक्रेट्स अफसरशाही का जो माइंड सेट है शायद वो चेंज हो गया है लेकिन आज हमें फिर मालूम हो गया कि उनके ब्यूरोक्रेसी का कोई माइंड सेट कभी चेंज न हुआ है न होने वाला है। यूसमर्ग में सियाहत से वाबस्ता अफराद का श्रीनगर में एहतजाज महकमे सियाहत के खिलाफ गम गुस्सा। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अपील की कि जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव फिलफौर मुनक्किद कराए जाएं ताकि ज़मीनी सतह पर जमहूरी निज़ाम को बहाल किया जा सके। जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी 2024 से पंचायतों की मियाद ख़त्म हो चुकी है। समिन 14 फरवरी जुमे को रत्नीपुरा पुलवामा के मरकजी जनाज़ागाह में ललित अस्पताल श्रीनगर और राह इंसानियत फाउंडेशन नामी गैर सरकारी तंजीम के बाहमी इश्तराक से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। इस कैंप में डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी पुलवामा की शिरकत भी मुतवक्के है। और अब रुख करते हैं जिला रामबन का। रामबन जिले के कई देही ब्लॉकों में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत किए गए कामों में बेज़ाब्तगियों की शिकायत सामने आई हैं। इनमें से बाज़ शिकायतों की महकमाना सतह पर तहकीकात की जा रही है जबकि बाज़ की तहकीकात ACB कर रही है। बताया जाता है कि PMAY मनरेगा और प्लान के तहत किए गए मुख्तलिफ कामों में होने वाली बेज़ाब्तगियों में बाज़ ठेकेदारों के साथ साथ मुतल्लिका मुलाज़मीन के मुलव्विस होने की भी खबरें हैं और यही वजह है कि वहाँ कई सारे लोगों की अदायगी नहीं हो पा रही है। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। जिला रामबन में महकमा दही तरक्यात के बेशतर ब्लॉकों में कमीशन के नाम पर मुबैना रिश्वतखोरी का चलन अभी तक गया नहीं है और कुछ मुलाजमीन की तरफ से मुबैना रिश्वतखोरी और कमीशन के तकाजों ने आम लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। पिछले कई सालों से प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जैसी गरीब और मफलूकुल हाल लोगों की स्कीम से भी जियो टैगिंग से लेकर मकानों की किस्तें डालने तक मुबैना तौर पर 10 से 20 हजार रुपए तक की रकम मुस्तहिक अफराद से ली गई है। इस बंदर बांट की वजह से सैकड़ों PMAY मकान तामीर ही नहीं किए जा सके हैं और माजी में ऐसे सैकड़ों मकान गैर मुस्तहिक और मंजूरी अफराद को भी अनायत किए गए हैं। आम लोगों और पंचायती नुमाइंदों का इल्जाम है कि पिछले 6-7 सालों के दौरान महकमा दही तरक्यात जिला रामबन में बाज मुलाजमीन और जूनियर इंजीनियरों ने सरकारी हुकूमत की मुबैना लूट खसूट की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के दौरान महकमा दही तरक्यात के मुलाजमीन ने मन मर्जी से प्लान मुरतब किए हैं और मनरेगा और दीगर तरक्याती कामों के मटीरियल की बाहरी हुकूमत को ठिकाने लगाया है और सालों से लोगों
के बकाया जात अदा ही नहीं किए गए हैं। महकमा दही तरक्यात के ब्लॉक बानहाल के खिलाफ कई शिकायतें जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो और LG शिकायती सेल को भी भेजी गई है, जिसमें महकमा दही तरक्यात बानहाल के कई जूनियर इंजीनियरों, फील्ड अमला और कुछ पंचायती नुमाइंदों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की रकूमात को मुयैना तौर पर मिल बांट पर हड़प करने के इल्जाम आयद किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई शिकायतों में इल्जाम लगाया गया है कि बानहाल ब्लॉक में सन 2017 से 2024 तक करोड़ों रुपए की रकूमात की हेराफेरी की गई है और इस जिम्न में बानहाल के एक साबका पंचायती नुमाइंदा खुर्शीद बशीर की एक ऐसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से 29 जनवरी 2024 और 21 अक्टूबर 2024 को खत लिखकर ACD रामन से खुर्द बुर्द के इन इल्जामात का जवाब 1 महीने के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात और मखसूस राय के साथ तलब किया था। जानकार जराये ने शहरबीन को बताया कि ACD रामबन ने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए BDO बानहाल को 28 दिसंबर 2024 को खत लिखकर अपनी सिफारिशात के साथ 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि इससे पहले बानहाल ब्लॉक में सरकारी रकूमात के खुर्द बुर्द की इन शिकायत की तहकीकात महकमा दही तरक्यात बानहाल ने नवंबर 2023 में की थी और तहकीकाती कमेटी की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पंचायत टिठार लवर में टाइल वर्क, कब्रिस्तान और स्कूल की दीवार समेत कई लैंड ड्रेन के काम या तो किए ही नहीं गए हैं या गैर मियारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए। खुद